Hello everyone, welcome back in the topic comparing quantities. Yesterday, the questions which I had given to you, I know few of you were asking me about its solution and its answers, but don't worry, I actually by mistake deleted that sheet or that worksheet from my tab. I could not find it there. So, in this video, I'm not continuing the answers of that normally, which I'm supposed to. But no issues, no problem. We will be working on the similar concept in this exercise. So, you don't have to worry for it. Okay. So, where exactly you have to work on that, of course, I am going to explain you. Okay. I'm going to explain you, don't worry. But but the thing is, I want you to unnecessary do not consider that there were some doubt and sir did not take it. Okay, so no issues, don't worry. Or in case if I find it, find the complete worksheet, I'll surely take that. Okay, let's understand. Okay, so a few things which are important that I we discussed, they could try to understand. um, Always remember the percentage is been taken on, percentage on, or when you take a percentage off, it is supposed to be taken always CP or MP, marked price, or original value, not a new value. So always remember that the percentage whenever you're going to take, you always you're going to take it on CP, market price, marked price, and the original value of it. Okay, or of course the total, you may say that even total. So the percentage that what you will be finding, it is always and always of total. Okay, so remember this is the key words, key points I'm telling you when we start the exercise. Second thing, we must understand, if it is profit, if the profit percent is maybe x percent, I won't take x, okay, 5%, then the selling price would be 105%. Okay, because it is going to be increased value, remember that. If the loss percent is 5%, then the selling price would be 95%. Okay, the remaining one, I hope you understand that. Okay, try to know this. Of course, the percent of CP or MP, whatever that is, for sure it would be remaining same thing as it is. Next one is about discount. If the discount is maybe 20%, then it would be 80% always. I hope you understand that discount is reducing the amount. Okay, so these things you must understand, directly. If I take the percentage of the number, then I get profit and loss and discount. But if I'm using the 100 form, that means subtracting from 100 or adding from 100, then if I take this form, this will give me directly selling price or maybe new value you will be getting. Okay, so keep that in mind. Okay, these will only give me the value of profit and loss and discount, and this will give me directly selling price. Okay, so that we have to keep in mind. And lastly, there are formula as well in this topic. Okay, and I know that you people or in your school, it must have taught to you with the formula. Okay, but we are not talking about formula anywhere. Okay, the reason why I'm not interested in telling you about formula, because that hardly become effective in solving questions. That's the reason I'm not taking formula. Okay, but yes, as and when we finish the topic, that time I will help you in telling you, okay, where to write the formula. That's it, and how to write the formula. But of course, I won't allow you to lose your marks in the examination. I am not even changing the method from the school's method to here. But one thing I'm going to do it, I'll be teaching you in a proper way, the correct order, and then I will tell you write the formula here. Okay, and of course we will be remembering the formula as well. Don't worry. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन. The very first question is, you can check, very interesting, देख लो. A man got 10% increase in his salary. That means 10% increase. 10% is increase. तो जो इंक्रीज होगा वो होगा 110%. इंक्रीज हुआ है ना,
तो 10% इंक्रीज हुआ है, सिर्फ इंक्रीज अमाउंट चाहिए तो सिर्फ 10% ओके, एंड टोटल अमाउंट चाहिए तो 110%. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओनली इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ दैट इफ यू वांट 10%, इफ टोटल इफ यू वांट इट इज 110%. तो देखते हैं आगे, देखते हैं. इफ हिज न्यू सैलरी इज दिस वन, ओके, द न्यू सैलरी, दैट मीन जो 110% है वो जो न्यू सैलरी है इज इक्वल टू 1,54,000. ठीक है, न्यू सैलरी. तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी पता नहीं, तो ओरिजिनल सैलरी हम लोग क्या पकड़ते हैं, एक्स पकड़ते हैं. ठीक है, अभी इफ आई टेक, देखो मैंने ऑलरेडी बोला था कि परसेंटेज जो लेना है वो किस पे लेना है, परसेंटेज ऑफ, आपको क्या लेना है, सी पी, एस पी नहीं लेना है, सी पी, एम पी, मार्क प्राइस, और मैंने क्या बोला था, टोटल, और मे बी ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू का ही हमें परसेंट लेना है. तो 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू एक्स, इज इट गोइंग टू बी न्यू सैलरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि 10% तो बहुत कम हो जाएगा, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. न्यू सैलरी इज नॉट गोइंग टू बी 10%, 10% प्लस होगा, तो प्लस होगा, तो इजंट इट, इट वुड बी 110% ऑफ एक्स वुड बी न्यू सैलरी, राइट. तो रिमेंबर दैट परसेंटेज कभी भी न्यू सैलरी पे नहीं निकालते, परसेंटेज कभी भी ओरिजिनल पे निकालते हैं. ओके, ओरिजिनल पे, सीपी पे, जो हमने परचेस किया हुआ है, जो हमारे पास है वैल्यू ऑलरेडी, उसी पे निकालते हैं. ओके, नॉट ऑन द न्यू वन. ऑलवेज रिमेंबर. तो 110 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू न्यू सैलरी 154,000. तो एक्स वुड बी इक्वल टू 154,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110. तो 0 गेट कैंसिल एंड 11 से डिविजिबल है आई थिंक. 11 वन ज़ा 11 फोर ज़ा 000. तो द सैलरी वॉज आई थिंक 1,40,000 इफ आई मल्टीप्लाई बाई 10. ठीक है, तो 1,40,000 वॉज द प्रीवियस सैलरी, ओरिजिनल सैलरी. देखो ईजी है, कुछ नहीं है, वही हम लोग कर रहे हैं जो हमने इसमें देखा, किसमें देखा, अपने वर्कशीट में देखा. एक एस्टरडे व्हाट वी हैव सीन इन द वर्कशीट, द सेम थिंग वी आर डूइंग इन दिस. ठीक है, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट उसके बारे में आपको ठीक से पता हो. ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है 110 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही आपको रिपीटेडली सामने आएगा. तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली. आगे बढ़ते हैं. सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, हर एक क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि किस पे क्या करना है और किसका परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. ऑन अ संडे 8:45 people went to zoo and on Monday 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कौन सी पकड़नी है, जो पहले अपने पास होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब 845. ठीक है, डिक्रीज कितना हुआ, इट्स नॉट 169, डिक्रीज्ड अमाउंट, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू. तो 845 माइनस 169, तो 5, ये 14 माइनस 6 8, नहीं गलत कुछ तो करो मैं, सॉरी. 15 माइनस 9 इज 6, 1 carry, and then 14 minus 7 is 7, 1 carry, and then it is 676. So the decreased number was 676. ठीक है, अभी इस डिक्रीज का हमें परसेंटेज निकालना है. ठीक है, जो भी डिक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है. तो ये किस पे निकालना है, टोटल वैल्यू है अपनी ये, उसको हम लोग ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, राइट. तो 676 अपॉन 845 एंड दैट इंटू 100 विल गिव मी डिक्रीज परसेंटेज. परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो इंटू 100. जो परसेंटेज निकालना होता है दैट इज रेशियो इंटू 100. तो डिक्रीज वैल्यू का रेशियो अपॉन द टोटल वैल्यू का रेशियो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. आई गेट डिक्रीज परसेंटेज, जो भी होगा आंसर. आई नो दैट कि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा वियर्ड है, मतलब थोड़े कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आ सकती है. तो मैं एक बार बस रफली ट्राई करके देखता हूँ, बुक पे ट्राई करके देखता हूँ. आप भी ट्राई करो.
आई थिंक इट्स 80%। नहीं पॉसिबल है, मतलब यू मे से दैट कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन में, बट ये ईजी है। इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, यू कैन गेट इट। ठीक है, एंड द आंसर इज़ 80% आई थिंक। एंड आपके पास टेक्स्ट बुक में आंसर होता भी है, तो 80% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके, ईजी है। कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी है तो मुझे बताओ, मैं पर्पसली कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया, बिकॉज दैट वुड गिव यू अ हिंट एंड यू विल एज इट इज़ कॉपी। ओके, आई डोंट वांट यू टू कॉपी द कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो खुद से ही करने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ओके, लर्न हाउ टू कैलकुलेट। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, लर्न इट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। I can just help you in understanding the concept, not in solving the questions. Okay, a shopkeeper buys 80 article for rupees 2400. So 80 articles for rupees 2400, मतलब 2400, and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Okay, that's fantastic. वन आर्टिकल के पीछे पूछा है, मतलब आप यू कैन फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स डिवाइड बाई 80 करके भी कर सकते हो। ओके, तो दैट वे वी कैन वर्क ऑन। मतलब बेसिकली मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, एक आर्टिकल का निकालो या 16 आर्टिकल का निकालो, 80 आर्टिकल का निकालो, वन एंड ऑल सेम। तो दो वेज है। सबसे पहले फाइंड आउट सी पी ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का सी पी क्या होगा, 2400 डिवाइडेड बाई 80, तो 0 गेट कैंसिल, 8 3s and 0, ₹30 is going to be my CP of one article. ओके, अभी प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज 16%, तो सेलिंग प्राइस परसेंट कितना होगा, तो SP सेलिंग प्राइस विल बी 116%, बराबर ना, सेलिंग प्राइस वुड बी 116%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिस टू दिस, ये स्लोली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस पूछा है ना। तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा 116% ऑफ। हमेशा परसेंट किस में लेना है, ऑफ किस पे लेना है, CP पे लेना है। CP कितना है, अभी आप बोलोगे यही है, नहीं हमने तो निकाल दिया ना, CP इज़ 30, तो 116% ऑफ 30 इज़ माई CP, राइट। तो 116 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30, तो 0 गेट कैंसिल। एंड यू मे से दैट कि 10 5 वगैरह से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नीचे 10 है ना, तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली एंड डिवाइड कर दो 10 से। 10 से डिवाइड करना मतलब शिफ्टिंग द पॉइंट, दैट्स इट। तो दैट वुड बी वेरी वेरी सिंपल। तो प्लीज़ डोंट अननेसरी डिवाइड एंड वेस्ट योर टाइम। तो 6 3 18, 1 कैरी, 3 1 3 + 1 4, एंड ये आएगा 3 1 3 अपॉन 10, एंड दिस इज ईजी टू डिवाइड और ईजी टू राइट इन डेसिमल, so 34.8। तो दिस इज द अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। कितना सिंपल है, देखो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, तो थिंग्स आर वेरी वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। हाँ, आप बोलोगे वन आर्टिकल का क्यों निकालो, बिकॉज इट वॉज आस्क्ड फॉर वन आर्टिकल। ओके, तो आप उल्टा भी कर सकते थे, लेकिन ये मुझे लगा ज़्यादा ईजी है। आफ्टरवर्ड्स डिवाइडिंग इज दिस इज ईजियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलो, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वॉज दिस वन। कॉस्ट मतलब CP वॉज कितना था, 15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, तो द CP वुड बी, देखो ट्राई टू, दिस इज नॉट अ CP, दिस इज कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो CP क्या हो जाता है पता है क्या, मतलब उसने जो भी स्पेंड किया वो भी तो उसी को भरना पड़ेगा ना। तो 15,500 + 450, ये होगा उसका CP। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,950। CP ही इतना है। ओके, ये रहा आपका CP। ये कॉस्ट अलग होता है, CP अलग होता है, समझ में आ गया, क्योंकि उतना स्पेंड करना पड़ा। इफ इट इज सोल्ड फॉर द रुपीज ऑफ प्रॉफिट, इफ इट इज सोल्ड फॉर द प्रॉफिट 15%, तो प्रॉफिट जो यू वांट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। आई थिंक इट्स सो वेरी सिंपल, सो वेरी सिंपल। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डू कैलकुलेशन। देखो, सेलिंग प्राइस SP इज गोइंग टू बी इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट इतना है, तो SP परसेंट कितना होगा, 115%। तो SP would be equal to 115% of CP, which is 15,950. 15,950. So it is 115 upon 100
into 15950. Okay, of course 0 get cancelled. And again I will suggest you not to divide by 10 and all or 5 and all, directly multiply. मतलब 1595 into 115. There are so many children those who say अरे बाप रे इतना बड़ा डिवीजन सर. तो ये बोलने के लिए जितना टाइम आप लगाते हैं ना उतने टाइम में आधा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. ओके, तो डोंट कंसिडर एनीथिंग एज सो बिग. Okay, things are so very simple. I'll show you that. 5 5 is 25, 5 2 carry. 5 9 is 45 plus 2 47, 7 2 4 carry. 5 5 is 25, 25 plus 4 29, 9 2 carry. 5 1 is 5 plus 2 7. 0 comes here and it is multiplying by 1, so 5 9 5 1. 00 5 9 5 1. That's it. I get 5 7 5 12 2 1 carry. 9 9 18 19 and 5. 24 4 2 carry. 7 2 9 9 9 18 plus 5. 18 plus 5. 23 3 2 carry. 2 5 7 1 8 and here is 1. And the 10 से डिवाइडेड तो यहाँ पे पॉइंट आएगा. तो 18,342.5 ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस. दैट्स इट. सो वेरी इजी. आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नो. You might check into the textbook as well if you want to, if you wish to check. Okay, you can do that, no problem. But I hope you are clear with the concept. तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमें दिया है, उसमें कुछ ना कुछ खर्चा किया तो वो भी उस CP में ऐड करना पड़ेगा आपको. एंड देन दैट वुड बिकम CP. एक बार वो CP आ गया, आपको SP कैसे निकालना है वो तो पता ही है. ओके, ठीक है. अभी थोड़े टाइम में हम लोग इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे. डोंट वरी. ओके, ना डबल कॉन्सेप्ट है. डबल कॉन्सेप्ट इन सेंस डबल ऑब्जेक्ट्स है, डबल आर्टिकल्स है. तो हर एक आर्टिकल के लिए अपना अपना काम करना है, जो अभी किया वैसे देखते हैं. और VCR क्या होता है? CD प्लेयर समझ लो, ठीक है. और VCR मतलब CD प्लेयर एंड ए TV वेर ब्रॉट फॉर 8,000 ईच. मतलब कॉस्ट प्राइस है. देखो VCR TV CP 8,000 ईच है, तो CP 8,000 है. Okay. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR. तो loss percent 4% and profit 8%. तो profit percent 8%. Find a gain and loss percent of the whole transaction. Okay. तो एक बात आपको समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे आपको SP नहीं फाइंड करना है. ओके, सबसे पहली बात आपको SP नहीं फाइंड करना है. आपको क्या फाइंड करना है? लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टुगेदर. टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है. ठीक है, देखते हैं. तो इसका लॉस हम लोग फाइंड कर सकते हैं. लॉस, तो लॉस विल बी इक्वल टू, देखो लॉस मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ अमाउंट. तो इट इज़ 4%. 4% ऑफ क्या होता है? ऑफ माई CP है ना. ऑफ इज ऑलवेज CP. तो इट इज़ 8,000. तो वी हैव 4/100 into 8,000 and this would cancel these two terms and then I get 4 8s are 32 and 0. So this is just a loss. This is just loss. And profit कितना हुआ है? उसको 8% प्रॉफिट हुआ है, तो इट इज़ 8% ऑफ CP. तो इट इज़ 8,000. तो इट इज़ 8/100 into 8,000, right? So 0 of course get cancelled and 8 8 is 64. It is 640 rupees of profit he could make. So you know that loss get cancelled. मतलब loss is negative. Loss will be subtracted from this particular amount and profit will be added to this particular amount. So my total profit or total loss if I want, total profit and total loss if I want, it would be profit. You can understand from this. It is 640 and 320 is loss. Okay, so profit is more. So total profit would be, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 640 तो हुआ है उसको, लेकिन 640 तो हुआ है, लेकिन 320 उसको लॉस हुआ है, तो 320 उसने सबट्रैक्ट करना है. कितना हो गया? देखो 0 2 and 320 इज इट्स टोटल, हिज टोटल
profit. But what is asked here? It is not asked about total profit. It is asked, check करो, what is the total loss or gain percentage? Profit means gain. Percentage पूछा है, तो परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? नाउ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, कैसे वो करते हैं? प्रॉफिट जो है अपॉन टोटल. ओके, टोटल मतलब क्या? टोटल क्या मतलब क्या होता है? सीपी. ऑफकोर्स सीपी पे ही प्रॉफिट कर, सब कुछ सीपी पे करना है, तो सीपी पे ही हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज निकालते हैं. तो जब सीपी पे परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी चाहिए मुझे. ओके, अभी आप लोग बोलोगे कि सीपी कौन सा होगा? 8,000 होगा, ये 8,000 होगा. बिल्कुल नहीं, ये होगा 16,000. क्यों 16,000? दोनों का टोटल इंटू 100. टोटल दोनों का, इसका 8,000, इसका 8,000, राइट? बिकॉज इट इज आस्क्ड फॉर टोटल ट्रांजेक्शन. तो 0 गेट कैंसिल, है ना, राइट? 0 यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाता है. 61 16 2 32. आप टू से भी करते हो. 2% इज माई टोटल profit. Hope you understood. Hope you are clear with it. Okay. You can find SP as well. देखो SP is going to be equal to 8,000 minus 320, है ना? SP हो जाता है 8,000 minus 320. It is 7680. And then SP in this case for the TV, it would be 8,000 minus 640. It would be 7,360. माइनस नहीं होगा ना, इस टाइम प्लस होगा, राइट? 640. तो इट वुड बी, सॉरी, इट वुड बी 8640, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एस पी भी निकाल सकते हैं इफ़ यू वांट बाय एडिंग इट. इन दोनों को ऐड करके भी आप लोग टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस फाइंड कर सकते हो. दोनों को ऐड किया, इमेजिन करो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब 7 इसमें, तो माई टोटल आंसर इज़, इन दोनों को अगर मैंने एस पी को ऐड किया, इट इज़ 16,320. और दिस इज़ माई सेलिंग प्राइस. एंड व्हाट वाज माई कॉस्ट प्राइस? इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो इट वाज 16,000. समझ में आ गया ना? ये रहा मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस और ये रहा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस. You can easily find out the profit percentage here, isn't it? 320 is my profit and the same answer is here. Okay, so that's very clear. That's very very clear. Fine. So I'll just erase this. आप any method follow कर सकते हो as you wish. ठीक है. Sixth question we'll discuss. I think till 7th we will go. Okay. Till 7th we'll go. Sixth question देखते हैं. Interesting सा क्वेश्चन है. During a sale, a shop offered a discount of 10% on marked price of all the items. What would the customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850? Okay, so we have here instead of CP, marked price. As I have said, everything what you will find out on CP or marked prices. यहाँ पे marked price दिया हुआ है तो हम लोग total marked price देखते हैं. तो he has the shopkeeper has offered 10% of discount. तो total marked price would be equal to, देखो, 1450 into 2 because pair of jean है ना, plus ये क्या हो गया, प्लस 850 इंटू 2 क्योंकि टू शर्ट्स उसने किए हुए यूज़ किए. ठीक है, तो ये क्या आता है देखते हैं टोटल. तो इट इज़ is like that. So something, isn't it? You get some mark price 0 0 and 9 plus 7 6 and 1 carry and 4 6 0 0. Is it 4,600? उसका बिल हो गया. ओके, ये बिल है. इस बिल पे उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट. ओके, नाउ डिस्काउंट इज 10%.
अगर मैंने इसका 10% निकाला तो पता है कितना आता है, ये आता है 460. दैट मीन्स डू यू थिंक द ओनली 460 द पर्सन हैज़ टू पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्काउंट रिड्यूस होता है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है, दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस. तो मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो देयरफॉर एस पी विल बी, एस पी परसेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कितना परसेंट होगा, देखो 10% तो उसने रिड्यूस किया, बचा कितना, 90% बचा, तो एस पी इज गोइंग टू बी 90%. तो एस पी विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अमाउंट 90% ऑफ द मार्केट प्राइस, मतलब 4600, and this is going to be equal to 90 upon 100 into 4600. This is to get cancelled, and the number is 0, 9 6 are 54, 4 5 carry, 9 4 are 36 plus 5 41. ये होगी मेरी अमाउंट, दैट वॉट आई हैव टू पे टू द शॉपकीपर आफ्टर रिड्यूसिंग द 10% ऑफ डिस्काउंट. देखो कितना ईजी है, वही चीज़ बार बार कर रहे हैं हम लोग. मैं वही आपको लास्ट डे भी बोला था कि एक ही चीज़ आप लोग क्या करोगे, बार बार करोगे. सो एक बार ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, देन थिंग्स विल बिकम बिट ईजियर. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं. ये वाला वो टीवी वाला जैसा ही क्वेश्चन है, वीसीआर एंड टीवी वाला क्वेश्चन जैसे ही है. अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज. तो हम लोग यहाँ पे बफेलो 1 एंड बफेलो 2 करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे वीसीआर एंड टीवी किया था. रुपीज़ ऑफ 20,000 ईच, मतलब सीपी जो है वो है 20,000 एंड सीपी जो है यहाँ पे वो भी है 20,000. हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यू डोंट वरी. ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, तो आप लोग कंसिडर करते हैं इसमें प्रॉफिट हुआ है उसको 5%. 5%, ठीक है. एंड ऑन द सेकेंड ही गॉट अ लॉस ऑफ 10%, तो लॉस ऑफ 10%. ओके, फाइंड ओवरऑल गेन. जब हम लोग ओवरऑल गेन एंड लॉस करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसका लॉस फाइंड, इसका प्रॉफिट फाइंड करते हैं, इसका लॉस फाइंड करते हैं, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस देखते हैं, एंड देन वो हम लोग टोटल सीपी पे फाइंड आउट करते हैं. तो दिस इज माई टोटल सीपी 20 + 20 40. ओके, प्रॉफिट फाइंड करते हैं, प्रॉफिट और गेन यू कैन से 5% ऑफ 20,000. आप लोग एस पी भी कर सकते हैं, इफ यू विश टू सॉल्व बाय एस पी यू कैन गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, I have no issue at all. So 5% of 20,000, 0 get cancelled, 0 get cancelled, and rupees 1,000 is his profit, right? And loss, I know how much is the loss going to be. I think it is going to be, yes, 2,000. Let's check. So it is 10% of 20,000. So that we have 10 upon 100 into 20,000. 0 got cancelled, and we have 2,000 left, as I said. So he got 2,000 rupees, 1,000 rupees profit and 2,000 rupees loss. So total what he has got, loss, क्योंकि लॉस ज़्यादा है तो टोटल इज लॉस कितना है, 1,000, 2,000 माइनस 1,000, इतना उसको लॉस हुआ है, तो 1,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है. अभी लॉस परसेंटेज फाइंड करना है. लॉस परसेंटेज गोइंग टू बी इक्वल टू, हाउ टू फाइंड आउट दैट, लॉस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, दिस लॉस अपॉन टोटल मतलब हम लोग क्या करते हैं, सीपी पे ही करते हैं, तो टोटल सीपी चाहिए, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल सीपी, इट इज़ 40,000. ये गलती करते हैं बच्चे बहुत जगह पे, इंटू 100 ऑफ कोर्स. तो 0 गॉट कैंसिल, 0 गॉट कैंसिल, ये 2 0 और 2 0 भी कैंसिल हो गए, तो इट इज़ 10/4% ऑफ कोर्स, एंड देन इट विल बी 5/2, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.5%. तो टोटल लॉस उसका जो हुआ है वो कितना हुआ है, 2.5% का उसको लॉस हुआ है. ठीक है ना. जस्ट होपिंग दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. या फिर 5% का लॉस होना चाहिए था, मुझे लग रहा है नहीं, बराबर 2.5% का ही लॉस हुआ है, राइट, करेक्ट. प्लीज़ वेरीफाई दीज आंसर्स. ये 7th क्वेश्चन था अपना. वेरीफाई दिस आंसर्स इन द टेक्स्ट बुक, बिकॉज कैलकुलेशन एरर माइट हैपन फ्रॉम माई साइड, बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग इट ऑन दिस स्क्रीन my brain won't work properly. If it is on the notebook it works, but on the screen it won't work, and at the same time I have to speak continuously. So while speaking also, whatever I have got in mind, that by mistake I put on the tab, so that might happen. To see that कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट हो. 7 क्वेश्चन ही आज करने हैं,
और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्टअप हो जाएगा। ओके, तो और कितने क्वेश्चन रह गए ये हम लोग सोचते हैं। देख लो 7 हो गए अपने, 8 9 एंड 10 आज हो जाता, बट ठीक है हम लोग कल देखेंगे, बिकॉज हमारे पास वो टैक्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके आगे आते हैं, जीएसटी टैक्स एंड ऑल, तो देखेंगे वो भी क्या है, वो भी कुछ अलग नहीं है, बहुत सेम ही चीज़ है, बस परसेंटेज निकालना है। इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं बताया आपको। द रीज़न वाई आई डिडंट टेल यू द फॉर्मूला, बिकॉज द सेम सेम रीज़न, बिकॉज एक ही चीज़ है। फॉर्मूला लगाओगे तो हर एक फॉर्मूला याद करो एंड देन वो लिखो, दैट आई डोंट वांट, आई डिडंट वांट दैट, I didn't want the same problem, same issue that what you would face. So it's better that we understand the concept of percentage and then solve it. Okay, that's what I would say. So thank you so much. आपको अभी पता चल गया कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में वो एस बी वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना, सेलिंग प्राइस वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बहुत बार, मैक्सिमम टाइम। तो थोड़ा सा वो ज़्यादा यूज़ करो, समझने की कोशिश करो, या फिर यस्टरडे का वीडियो देखो, लास्ट सेशन में हमने वही किया है, और फिर इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज नथिंग बट डोंट सॉल्व विथ मी। सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, सारे के सारे क्वेश्चंस को वीडियो देख लो, एंड देन क्लोज द वीडियो एंड ट्राई whether you can do all the questions or no at a time. If you are able to do, then only you can think that you learned everything, you understood everything, otherwise no. Okay, remember that. So thank you so much. Bye bye, ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका, बाय।